Hello students, welcome to your biology class. Hope you all are well. So students, we will start with the daily review. Then we will start our next topic. So first is the select the incorrect sentence. We have to select the incorrect sentence. So blood matrix contain protein, salt and hormones. This is the correct sentence. Two bones are connected with ligaments. This is also the correct. टेंडन्स आर फ्रेजाइल एंड नॉन फाइब्रस टिश्यूज. दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज टेंडन्स जो होते हैं वो फ्रेजाइल नहीं होते हैं. एंड कार्टिलेज इज़ द फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट, कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड इन. कार्टिलेज कहाँ पे हमें फाउंड नहीं होता है? सो कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड इन दी किडनी बिकॉज किडनी जो है एक ऑर्गन है, तो वहाँ पे कार्टिलेज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है. Next is the which epithelial tissue is present on the tongue. So in the tongue, which epithelial tissue is present? Stratified squamous tissue. Not the simple but the stratified, जिसमें many layers is the present. So stratified squamous tissues are present on the tongue. Okay, so student, let's start with the next topic. So next, open your SB 33, page number 33 of the supplementary book. So next are the muscular tissues. In the last lecture we did the connective tissues, right? Various connective tissues also. So today we will do the muscular tissue. So the muscular tissues control the movement of an organism. They consist of the elongated cells called muscular fibers. The muscle fibers contain contractile proteins which allow the muscles to contract to allow movement. So muscular tissues क्या होते हैं? जो कि हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दी मसल टिश्यूज़. तो वो एक एलोंगेटेड सेल्स के कंसिस्ट होते हैं जिनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं. सो जो मसल टिश्यूज़ होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. उनको हम टू वेज में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज़ दी वॉलेंट्री एंड सेकेंड इज़ दी involuntary. Muscles are those you can consequently control, such as the muscle in your arms and legs. When seen under a microscope, these show strips and hence are called striated muscles. So जो voluntary muscles वो होती हैं जो हमारे खुद के कंट्रोल में हो, मतलब कि जब हम चाहें तो हम उसको लीड कर सकते हैं. ठीक है, लाइक मूवमेंट ऑफ आर आर्म, मूवमेंट ऑफ आर लेग्स, दे आर इन आर कंट्रोल, राइट. तो वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हों, और ये इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं. ओके, ये याद रखना है. तो वॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड दी स्ट्रिएटेड मसल्स, जिनके ऊपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं. So the involuntary muscles are not directly under your control, such as the muscle in the intestine. Involuntary muscle tissues are of two types, smooth and cardiac. The different muscle tissues are described as follow. तो involuntary muscles वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी ना हो, दैट आर कॉल्ड दी इनवॉलेंट्री मसल्स. एंड इन दिस स्मूथ एंड कार्डियक मसल जो हैं वो इसके अंडर आते हैं. ओके, एंड फॉलोइंग आर दी डायग्राम्स ऑफ द कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्ट्रिएटेड मसल. यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स इन योर नोटबुक. 34 पेज नंबर ऑफ योर सप्लीमेंट्री बुक. So here are the differences between the striated, smooth and cardiac basis on their location, structure and function. So striated muscles are located directly or indirectly attached to the bone. जो striated muscles होते हैं वो directly या indirectly bone के साथ attached होते हैं. and the structure जो होता है उनका वो long, cylindrical और unbranched cells होते हैं, और इनके पास multiple nuclei होते हैं. और इनका function क्या होता है? They help in the voluntary movements such as the movement of limbs. And the smooth muscles, next is the smooth muscles. They are present in the blood vessels, organs such as small intestine, stomach and bladder. and the structure जो है इनका एक इनकी pointed ends होते हैं, और इनके पास single nucleus होता है. and their function is to help in performing involuntary functions such as the movement of food through the digestive tract. तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं. ठीक है, पर ये इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं कि इनका कभी कभी ही इनकी ज़रूरत जो है वो हमें टाइमली हर टाइम नहीं पड़ती, कुछ समय के बाद पड़ती हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ द कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट around the heart and their structure is cylindrical and branch cells, and they contain single nucleus, and they help the heart contract, allowing it to the pump blood through the body.
तो जो कार्डियक मसल जो हैं दे आर ऑल्सो द इन्वॉलेंट्री मसल्स, बट ये कौन सी इन्वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो कि हर टाइम काम कर रहे होते हैं, कभी भी वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आते, दे आर ऑलवेज वर्किंग लाइक द बीटिंग ऑफ द हार्ट। सो नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन 20, क्लासीफाई द फॉलोइंग टिश्यू एज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप 5 मिनट्स के बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करना। ओके, is the answer for the practice question 20.1. Striated muscles are the voluntary muscles and they are present in the skeletal muscles like our arms and legs, which we can control. That means the striated muscles are voluntary, means they are इन आर कंट्रोल, मतलब कि वो हमारे विल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन एंड वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट, और हम इनकी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। and next is the cardiac muscle which are involuntary muscle, they are present in the heart and we cannot control its movement, तो इनके भी हम मूवमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, next is NCERT exercise question 6 on page number 78. Diagrammatically show the difference between these three types of muscle fiber. So the cardiac muscles have the cylindrical and branched cells and contains a single nucleus. इनके पास single nucleus होता है cardiac muscles पर and they are cylindrical and branched cells. So the smooth muscles, next are the smooth muscles, they have the pointed ends, इनके ends जो होते हैं वो pointed होते हैं और they also have a single nucleus. And last one is the striated or skeletal muscles, they are also called skeletal because they are found under the skeletal muscles. So they have long cylindrical and unbranched cells which contain multiple nuclei. तो इनके जो cells होते हैं वो unbranched होते हैं, पर हर एक जो टिश्यू होता है उसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दी NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 ऑन पेज 78. व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। सो कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट एंड दे कंट्रोल द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और द बीटिंग ऑफ द हार्ट। तो कार्डियक मसल जो हैं वो हार्ट के अराउंड हमें मिलते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है कि वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंट्रोल करते हैं हमारे हार्ट की। सो नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएशन जो था ये आपने अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, ये बेटर डिफ्रेंशिएशन है। सो देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स। सो स्ट्रिएटेड मसल्स आर दोज जिनके ऊपर स्ट्रिप्ड मसल्स, मतलब कि जिनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट हो। अनस्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं एंड लास्ट वन इज़ दी कार्डियक मसल्स। सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। So students, why do you think our eyelids close on their own when dust enters? तो जब डस्ट एंटर करती है तो हमारी आईलिड जो है वो अपने आप ही क्लोज़ कैसे हो जाती हैं, और जब हम अपने आप ही अपना हैंड रिमूव कर लेते हैं जब हम हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं। तो जब हम हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं तो हम अपना हैंड जो है वो अनकॉन्शियसली क्यों रिमूव कर देते हैं। सो in this next topic we will study about this. So we all respond to the different stimuli in our environment. This happens because of the nervous system which is made up of the nervous tissues. So let's learn about the nervous tissue. So the nervous tissues make up the brain, spinal cord and nerves. So the nervous tissues are made up of nerve cells or neurons and these are the nerve cells. जो ये nerve cells हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं वो पास ऑन होते हैं थ्रू द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ऑब्जर्व द नर्व सेल एंड राइट इट्स फीचर इन योर नोटबुक। ये जो नर्व सेल है इसकी डायग्राम भी आपने अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द एक्सन, इस पार्ट को हम एक्सन बोलते हैं नर्व सेल का। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन वेयर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एंड दिस शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स ऑफ द सेल बॉडी इज नोन एज डेंड्राइट्स, जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो क्रिएट होता है। एंड
दिस एक्सोन कैन बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। तो ये जो एक्सोन होते हैं ये मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं। सो वाई डू यू थिंक द न्यूरॉन इज सो लॉन्ग? तो न्यूरॉन इतने लॉन्ग क्यों होते हैं? सो द नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। सो दिस इज़ वाई एक्सन्स आर वेरी लॉन्ग। सो एक्सन जो है उनका स्ट्रक्चर जो लॉन्ग क्यों होता है? बिकॉज जो नर्व सेल है उनको सिग्नल जो है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्रेन तक ट्रांसमिट करने होते हैं। तो इसलिए जो एक्शन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग होना चाहिए। So when many nerve cells are bound together by a connective tissues, they make up the nerve. Nerves are found in all parts of the body. So जब न्यूरॉन जो है वो कंटिन्यूस कनेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, सो दे फॉर्म अ नर्व्स, तो वो नर्व्स बनाते हैं जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। ओके, सो हाउ डज़ द सिग्नल पास थ्रू द नर्व? तो नर्व्स के थ्रू सिग्नल कैसे पास होता है? तो अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें तो जो वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो वो ब्रेन तक जाता है तो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड बाय न्यूरॉन, जब आपने सोर्स ऑफ हीट को टच किया, सो द इन्फॉर्मेशन वाज रजिस्टर्ड बाय द न्यूरॉन, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्पाइनल कॉर्ड तक गई। किसके थ्रू गई? न्यूरॉन्स के थ्रू। सो इन्फॉर्मेशन इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय द न्यूरॉन एंड द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड टू रिमूव द फिंगर। तो वहाँ से एक रिस्पॉन्स, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया कि आपने फिंगर रिमूव करनी है। सो द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड टू रिमूव द फिंगर। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फिंगर्स को ट्रांसफ़र किए गई, किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र की गई, और हमारा जो हैंड है वो अपने आप ही अवे को मूव हो जाता है। सो दीज आर दी एक्शन कि पहले जो है हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया। सो जो वहाँ से इंफॉर्मेशन थी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक गई, और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने इन्फॉर्मेशन दी कि अब आपने हैंड को रिमूव करना है। सो वो वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो सिग्नल जो है वो फिर से फिंगर्स तक आया और आपने अपना फिंगर जो है वो रिमूव कर दिया हॉट ऑब्जेक्ट से। ओके, सो दिस इज़ हाउ द नर्व कंडक्शंस अकर एंड नर्वस टिश्यू जो है इसका उसकी परफॉर्मेंस ऐसे होती है। सो दिस इज़ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की वेल लेबल्ड डायग्राम है। सो हेयर इज़ द सेल बॉडी वेयर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड डेंड्राइट्स आर कनेक्टेड टू द सेल बॉडी। दे आर द branch like structure from where the electrical impulses are passed to the axon। तो डेंड्राइट से जो है वो सिग्नल सेल बॉडी में जाता है, फिर सेल बॉडी से फिर एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो द नेम द फॉलोइंग NCERT exercise question 10 on page 78 the tissue that form the inner lining of our mouth। So the tissue which form our inner lining of our mouth is called the squamous epithelium। Tissue that connects muscle to bone in humans are called the tendons। Tissue that transport food in plants are called the phloem। Tissue that stores fat in our body are called the adipose tissue, and the connective tissue with the fluid matrix is called the blood tissue present in the brain is called the nervous tissue। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17.1। तो आपके 27 पेज नंबर पे सप्लीमेंट्री बुक के एक ये क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है। तो वहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया होगा ऐसा, तो आपने ये फ्लो चार्ट जो है इनके बेसिस में आपने डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बताने हैं। सो द मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू जो है इनको हमने किस बेस पे डिफ्रेंशिएट किया था? तो दे आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू डिफ्रेंशिएट। मेरिस्टेमेटिक जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ द एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो इनका जो मोड बेसिक डिफरेंस है वो किस बेस में है? सो दे आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। एपिकल इज प्रेजेंट ऑन द टिप of the plant, intercalary are present on the interconnection of the leaves and the stem, and the lateral meristems are present on the girth। So next is the simple and complex permanent tissue। They are differentiated on the basis
ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं उनको वो उनके टाइप्स ऑफ सेल के बेसिस में उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ द पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। दे आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उन बेसिस में इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। दे आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस दे कंटेन एंड देन अदर सिंपल टिश्यूज़ एंड एपिडर्मिस। जो सिंपल टिश्यूज़ और एपिडर्मिस है उनको हम किस बेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, दे आर ऑल्सो differentiated on the basis of location, structure and function. And the next is the epidermal tissue in roots, leaves, desert, mature plants. They are on the basis of function. तो उनको हम function उनके फंक्शन के बेसिस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड लास्ट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर differentiated on the basis of structure and function, like xylem's function is to transport water and phloem's function is to transport food. So next, fill in the flow chart given below to recap what you have learned about the animal tissues. तो आपने इस flow chart को complete करना है. So the 4 types of animal tissues are epidermal tissues, connective tissues, muscular tissues and नर्वस टिश्यूज़. तो अब आपने उसके बेसिस में ये फ्लो चार्ट बनाना था. सो हेयर इज़ द आंसर. सो एपिथेलियल टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, स्क्वेमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल टिश्यूज़. नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यूज़. दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़: ब्लड, टेंडन, लेगामेंट, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज एंड एरिगोस टिश्यूज़. नेक्स्ट इज़ द मस्कुलर टिश्यू. So muscular tissues are of the 3 types: stratified muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Stratified and smooth are stratified is the voluntary muscles. जो वो voluntary muscles होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं. एंड स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आर द इनवॉलेंट्री मसल्स विच आर नॉट इन आर कंट्रोल. एंड लास्ट इज द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं प्रेजेंट? न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. ओके, so I hope student you have understood this topic. So students, we have now come to the end of this unit and we are one class away from the unit assessment and all of you need to start preparing for it. So your SB has a special revision guide for each unit that can help you prepare for that unit's assessment. तो आपने अपनी रिवीजन अब शुरू कर देनी है अपनी असेसमेंट की, जो अब आपके ASM आ रहे हैं, ASM 2. ओके, so all the best for your ASM. Bye bye.